بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا ہو سکے ماہ رمضان میں اس کی بارگاہ میں جا کر مانگتے رہو، اتنا مانگو کہ تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے لیکن وہ دیتا ہوا نہیں تھکے گا۔ اسی کی عبادت کرنا اور اسی سے دعا مانگنا، لیکن ڈائریکٹ نہیں مانگنا۔ دعا معصومین کے وسیلے سے مانگے، محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر مانگے۔ اس سے بہتر ماہ نہیں ہے کہ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا۔ اگر دعائیں یاد نہیں ہیں تو لکھ لو، جب یاد آئے ایک پیپر پہ لکھ اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگو۔ کوئی ٹائمنگز نہیں ہے دعا مانگنے کی، یہ نہیں ہے کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم آپ دعا مانگ سکتے، نو۔ پروردگار کی بارگاہ میں 24/7 24 گھنٹے تم مانگتے رہو، کوئی بری بات نہیں، بلکہ مانگنا بہترین عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دے، اور صرف بولا نہیں، معصومین نے اس کو کر کے بتایا، اللہ کے رسول نے کر کے بتایا۔ مولا اور شہزادی کونین اور امام حسن سے لے کے زمانے کے امام، ہر امام نے دعائیں مانگی اور مسلسل مانگتے رہے۔ اور رمضان میں خاص طور پر رمضان کے لیے یہ کہا گیا، دیکھیں 2 دن آپ کے گزر گئے، آج تیسرا دن بھی آپ کا گزر رہا، ماشاءاللہ صحت کے ساتھ ہے، ہیلتھی ہے، سکون ہے۔ جب ایک روزہ ختم ہوتا، افطار آتا، تو دل کو ایک سکون مل جاتا، ایک پیس آ جاتا۔ کل میں نے بتایا کہ پیس کیا چیز، سکون کیا چیز، اور کل میں نے سورہ کوثر کے بارے میں بولا تھا اور کہا تھا کہ آج بھی بولوں گا سورہ کوثر۔ اتنا ریکمینڈڈ سورہ ہے، سکون کے لیے، پیس کے لیے ریکمینڈڈ سورہ ہے، رزق میں برکت کے لیے بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ۔ کثرت سے تلاوت کرو، اتنی تلاوت کرو کہ تمہارے رزق کے دروازے خود بخود کھل جائیں۔ اور جب بھی تلاوت کرنا تو تھوڑا بریک دے کے کرنا، بریک دے کے مطلب 9 دفعہ پڑھا، 9 دفعہ پڑھنے کے بعد رکنا، رک کے واسطہ دینا شہزادی کونین کا اور ان کے بچوں کا اور مولا کا، واسطہ دے کے دعا کرنا۔ پھر مثال کے طور پہ 9 مرتبہ پڑھی، پھر 9 مرتبہ پڑھ کے پھر رکو، رک کے دعا مانگو۔ مسلسل سورے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ تم دعا بھی مانگتے رہو۔ جتنی دعائیں مانگتے جاؤ گے تو اس 9 سورے کے بدلے میں اللہ تم کو کیا عطا کرے تم کو نہیں معلوم۔ سورہ کوثر اتنا رزق کے لیے بہت اچھا، کل میں نے بولا تھا۔ اور اولاد کے لیے، اولاد اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، کثرت سے تلاوت کرے۔ جیسے میں طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے کرو، 9 مرتبہ 18 مرتبہ پڑھے، بریک کرو، بریک کر کے واسطہ دو محمد اور آل محمد کا، اس کے بعد پھر اس کی تلاوت کرو۔ اولاد کو حاصل، جس کو اولاد نہیں ہے وہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اس لیے کہ کوثر کثیر اولاد کے معنی ہے، کئی معنوں میں لیا گیا اور اس معنی میں بھی لیا گیا کہ جس اگر اولاد چاہتے ہو تو کثیر اولاد تم کو اللہ سورہ کوثر کی برکت سے دیتا۔ اور یہ سورہ کوثر جیسے میں نے کہا کہ مظلوم بی بی کی ولادت کے وقت آیا ہے، تو یہ سورہ منسوب ہے شہزادی کونین سے، میری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اولاد کے لیے بہت اچھا، کسی مقصد کے لیے آپ جا رہے، کوئی بھی مقصد ہو آپ کا، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، انٹرویو دینے جا رہے، کوئی مقصد کے لیے جا رہے، کوئی کام کے لیے جا رہے، تو سورہ کوثر کی تلاوت کر کے جاؤ۔ جب سورہ کوثر کی تلاوت کر کے کوئی جاتا ہے تو اللہ راستوں کو کھولنے لگتا، راستے تمہارے کھلنے لگتے، وہ رکاوٹیں، وہ آبسٹیکلز جو لائف میں وہ لائف کے دور ہو جاتے۔ دوستو جب دنیا میں ہوتے ہیں تو یہی چیز آخرت میں بھی ہو جاتی کہ اگر جو کثرت سے سورہ کوثر تلاوت کرے اس کی لحد روشن ہو جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، میں نے بول دیا اور آپ نے سن لیا۔ ہم نے ایزی لیا اس جملے کو، کیوں ایزی لیا؟ کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں لحد، اور ہم کبھی یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ میری لحد اندھیری ہوگی، کبھی میرے ذہن میں نہیں آتا۔ پلیز یہ بہت امپورٹنٹ مجلسیں چل، کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میری گریو بھی اندھیری ہوگی۔ ارے بابا، سب سے زیادہ اگر کوئی اندھیری جگہ ہے تو وہ تمہاری گریو ہے، سب سے زیادہ۔ اس اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے سورہ کوثر۔ آپ بولیں گے کیوں ہے، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گریو اندھیری ہوگی؟
यूके में या इंडिया पाकिस्तान में? यूके में थोड़ा सा स्टाइल अलग है दफन करने का, और इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा स्टाइल अलग है। यूके में पूरे कॉफिन के साथ आपको उतार देते नीचे और ऊपर से लीड लाके लगा देते, ऐसा ही होता है ना, लीड लगा दिए। और इंडिया पाकिस्तान में खाद डालते, कड़ी रखते, बहरहाल एक अलग सिस्टम है, मैं पूरा वो नहीं बता रहा। तो आप अंदाजा लगाओ कि वो कितनी कैसी खतरनाक जगह, इतनी बड़ी ग्रेव है, ऊपर से हर तरफ से बंद है, हर तरफ से बंद है। सूरह कौसर के लिए कहा गया कि ये पढ़ने वाले की लहर कुशादा हो जाती, बढ़ जाती, सुभान फैल जाती। आप सोचो अगर मेरी लहर बढ़ गई, मैं क्या चाह रहा, मैं 6 फीट के अंदर नहीं हूं, इतनी बड़ी तो कितना आराम हो गया। ये कौसर पढ़ने का ये एक फायदा, और वो भी माह रमजान। माह रमजान में इस क्यों मैं फोर्स कर रहा, माह रमजान में असल में माह रमजान का सूरा नहीं है, माह रमजान में इसकी वजाहत हुई, माह रमजान में इसकी तफसीर हुई। इसलिए ये सूरा तो 20 जमादुस्सानी मक्की सूरा है, ये मदीना का सूरा नहीं है। और रमजान के रोजे वाजिब हुए मदीने में, मक्के में नहीं थे, मदीने में नहीं थे। 2 हिजरी को रमजान के रोजे वाजिब, लेकिन मैं क्यों बोल रहा कि ये रमजान का सूरा है, इसीलिए बोल रहा ये नाजिल हुआ शहजादी कौनैन की विलादत के बाद मक्के में। इसकी तफसीर कब बनी? रमजान में। वाह वाह। पहली वो वक्त, अभी टाइम है जश्न का, जब आएगा तो मैं तफसील सुनाऊंगा। मौला हसन अलैहिस्सलाम तफसीर सूरे कौसर बनकर दुनिया में आए थे, इसीलिए रमजान में ये सूरे की पूरी तफसीर हमारे सामने आई। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने मक्के में कहा, अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब हमने तुमको कौसर अता किया, लोगों के समझ में नहीं आया, उस वक्त समझ में नहीं आया, इसलिए कि शहजादी कौनैन की विलादत। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस सूरे की तफसीर बनकर आए, जो 15 रमजान की इस अहले चैनल की महफिल में सुनेंगे इंशाल्लाह, उसमें डिटेल बताऊंगा। तो सूरह कौसर रमजान में बहुत बरकत, फर्स्ट 15 डेज के लिए ये सूरह कौसर तुम कसरत से तिलावत करो। सेकेंड 15 डेज में 21 रमजान तक सूरह इन्ना अंज़लना कसरत से अभी भी तिलावत करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कौसर जरूर तिलावत करो। अब इन दिनों मैं कौसर पे बात कर रहा, इसलिए कौसर बता रहा हूं। तो कोशिश ये करो कि लहद को कुशादा करने के लिए, लहद को बढ़ाने के लिए, उस अंधेरे को खत्म करने के लिए सूरह कौसर से बेहतर कोई सूरा नहीं। कई सूरे, लेकिन ये सूरा बहुत ही रिकमेंडेड है। जितना तिलावत करोगे सूरह, और इतना छोटा सूरा है, मैं बोलता चलते फिरते, इवन खुदा ना खासा अगर आप वजू से भी नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो, आप पढ़ लो, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जैसा फातिहा बाज़ वक़्त पढ़ लेते हैं, बाज़ वक़्त आप जा रहे, कोई रास्ते में कोई ग्रेवयार्ड नजर आया, आपने गाड़ी में बैठ के फातिहा पढ़, कोई बात, वजू से रहे तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो और आपने कौसर पढ़ी। और इतना अच्छा कहा गया कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे, रिस्क के लिए जा रहे, तलाश है रिस्क, कोई अगर तलाश से रिस्क में जाता है कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे बिजनेस मिल जाए, मेरा रिस्क खुल जाए, कितने लोगों के प्रॉब्लम्स है। इसलिए कि जो मैं यूके में सिर्फ उनके लिए तो नहीं पढ़ रहा ना, से सब कॉन्टिनेंट वाले भी सुन रहे, अफ्रीका वाले भी सुन रहे, दुनिया के दूसरे हिस्से वाले भी सुन रहे, उन सब के लिए ग्लोबल मैसेज है कि जब तुम तलाश है रिस्क में जाओ तो पढ़ते हुए जाओ, जितनी दफा चाहे पढ़ो। जैसा मैं बोला, अगर ब्रेक कर करके पढ़े तो और अच्छा, क्यों? तुम ब्रेक करके पढ़े, फौरन दुआ करें, और अल्लाह को दुआ बहुत पसंद है। जाने से पहले तुमने मांग लिया अल्लाह से तो तुम पहुंचोगी भी नहीं, वहां तुम्हारा रिस्क तैयार है, तुम्हारे पहुंचने से पहले रिस्क तैयार हो जाए। इसलिए कि अल्लाह की ये सिफत है, हमेशा याद रखो, अल्लाह की ये सिफत है, अल्लाह बंदे को दुनिया में भेजता है, हम दुनिया में आते हैं, आने के बाद रिस्क को नहीं भेजता, हम आने से पहले हमारा रिस्क नीचे तैयार रहता। ये उसका करम है, ये उसका करम है। ऐसा करीम है, ऐसा करीम, पहले रिस्क को पैदा करता, उसके बाद बंदे को। तो मैं क्या बोल रहा, पहले हमारा रिस्क आता और उसके बाद हम दुनिया में आते। तो कितनी बड़ी बात कि दुनिया में आते ही रिस्क है, रिस्क रखा हुआ है, अब हम उसकी तलाश में जाते हैं, उसको हासिल करने के लिए जाते हैं। हासिल करने के लिए सूरह कौसर पढ़ो, उसको हासिल करने के लिए कुरान का ये सूरा पढ़ते हुए जाओ तो जल्दी हासिल हो जाएगा। मतलब इट विल नॉट टेक टाइम,
کہ मतलब तुमको जस्तुजू ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कोशिश ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, वो करीम तुम्हारे लिए तैयार रखेगा कि तुम पहुंचने से पहले तुम्हारा रिस्क खुल गया, वो मिल गया। तो ये रिस्क के लिए बहुत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2-3 मिनट इसके बारे में भी बोलता कि सबसे अच्छी बात यह है कि जितना तुम पढ़ोगे ये स्टॉक हो रहा अल्लाह की बारगाह में, ये सेव हो रहा अल्लाह की बारगाह में, ये बारगाह इलाही में सेव हो जाएगा। क्यों सेव हो रहा? ये सेव हो जाएगा कि जब तुम पलटोगे, जब तुम आओगे उसकी बारगाह में, तो ये सूर्य कौसर तुम्हारे लिए रोशनी बनकर नीचे आएगा। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि कोई चिराग, नीचे चिराग नहीं है। आपको मालूम है हर लहद, गौर से सुनो, हर मोमिन की लहद, आम मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा, हर लहद को जो हमारी ग्रेव है, हमको नहीं मालूम कि इंडिया में होगी, पाकिस्तान में होगी, अमेरिका में होगी, लंदन में होगी, कनाडा में होगी, वी डोंट नो, हमको कुछ भी नहीं मालूम कि मरेंगे कहाँ, दफन कहाँ होंगे, वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा। आप रहते हैं इंडिया में, हो सकता है आपकी मौत कहीं और आ जाए और आप दफन कहीं और हो जाए। तो हर जगह की ग्रेव हमको नहीं मालूम, अल्लाह को तो मालूम है, अल्लाह ने तो बनाई है। ग्रेव पुकारती है रोजाना 40, अगर किसी की एज 40 इयर्स की हो गई ना, 40 इयर्स के बाद तुम्हारी ग्रेव जहां पे भी है दुनिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, लंदन, कनाडा, कहीं भी हो, वो पुकारती है। क्या कह के पुकारती है कि ऐ मेरे दामन में, ये हदीस मासूम की हदीस है, ऐ मेरे दामन में आने वाले, ये अंधेरा अंधेरा घर है, उसके जुमले होते हैं, तारीकी है और यहाँ कोई चिराग नहीं है, अपने साथ चिराग लेकर आओ। वाह वाह, किसी भी आलिम दीन से पूछ लो, 40 इयर्स के बाद तुम्हारी ग्रेव तुमको पुकार के तुम्हारे कॉन्शियस को हिलाती है, कॉन्शियस को हिलाती है, तुम्हें बेदार करती है कि आर यू स्लीपिंग, जस्ट गेट अप, गेट अप, कि तुम्हारी ग्रेव पुकार के बोल रही है कि मेरे दामन में आने वाले हैं, या सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं है। हमारे कानों में वो आवाज नहीं आ रही है, वो खुद बोलती है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कि अपने साथ चिराग को लेकर आओ, अपने साथ रोशनी को लेकर आओ, अपने साथ कैंडल को लेकर आओ। मैं कुछ देने वाली नहीं हूं, जो तुम लेके आओगे वो यहां मिलेगा। तो अंधेरा को खत्म करने के लिए ये सूर्य कौसर है। माह रमजान में इतना सवाब, मैं बार बार बोल रहा ये जुमला, बार बार बोल रहा, कम से कम दिन भर में 5 मरतबा तो पढ़ो यार, just 5 times, at least। आज की मेरी मजलिस सुनने के बाद बैठ के आप सुन रहे हैं, जहां पे भी बैठ के सुन रहे हैं, अपने घर में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग टेबल पे, जहां पे भी बैठ के सुन, पहले बार चैनल को 5 मिनट 5 दफा तो पढ़ लो, 5 दफा पढ़ के बोलो अल्लाह इस सूर्य कौसर की बरकत दे दे, माह रमजान की, अल्लाह रास्ता खोल दे, अल्लाह हमारी जिंदगी में रोशनी दे दे। दोस्तों, अगर रोशनी चाहते हो ना, दुनिया और आखिरत, हियर एंड हियर आफ्टर, हियर एंड हियर आफ्टर, ये रोशनी कुरान के सूरों से मिलेगी, मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत से मिलेगी। मैं क्यों बोल रहा, 5 दफा पढ़ रहे, 9 दफा पढ़ रहे, पढ़ के दुआ करो मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता देकर। और सूरह कौसर जब भी पढ़ना तो मजलूम शहजादी का वास्ता जरूर दे, ये बीबी का सूरा है, और बीबी से बड़ा कोई वास्ता नहीं अल्लाह की बारगाह, कोई वास्ता नहीं, इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं। तो पढ़ के तुम्हारी ग्रेव को इतना रोशन करती है। इसका रिवायत के जुमले है कि जब मैयत को लिटा देते और लहद बंद हो जाती, अव्वल शब की नमाज और ये सूरह कौसर, रोशनी बनती, लिटरली लाइट आ जाती है, वहां पे लाइट आती है और वो अंधेरा एक लम्हे में खत्म। जो इंसान वहशत में पड़ा हुआ है, अब बोलेंगे वहशत में क्यों रहते, कोई भी नहीं रहता वहशत, हम तो मौला के चाहने वाले। तो क्या मौला के चाहने वालों के लिए आप 2 रकत नमाज है, वहशत है, खबर नहीं पड़ते? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ये निकालो जहन से, ये जबान से, देखिए आपको ये बातें कोई नहीं बोले। मैं हथेली पे जन्नत देने वाला मौलवी नहीं हूं, इसलिए मौला ने हथेली पे जन्नत दे दी। मौला ने कहा अमल करो और आओ, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। माह रमजान में हम सब के गुनाहों को माफ करे, ये महीना ही गुनाहों को माफ करवाने का। तो अगर आपके जहन में, हमारे जहन में यह है कि मैं तो बहुत बड़ा आजादार हूं, बहुत बड़ा मौला, 200% आजादार है हुसैन के लिए रोशनी, 200% मौला के चाहने वालों के लिए रोशनी,
لیکن جو میں نے گناہ کیے اس کی سزا کیا؟ کوئی روایت میں ہے کہ یہ اتنا بڑا عزادار، اتنا بڑا مولا کا چاہنے والا ہے، اس کے لیے 2 رکعت نماز مت پڑھو؟ آپ نہیں پڑھتے، کیوں مرتا ہے؟ اور آج کل تو بہت کامن ہو گیا، واٹس ایپ آ جاتا فوراً کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے، آپ اس کے لیے 2 رکعت وحشت ہے خبر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ ایک فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں پہلی رات کی، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس وحشت کو دور کرنے کے لیے۔ وہ نماز بھی، وہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بھی اندھیروں کو دور کرتی ہے، وحشت کو، اس خوف کو، اس ڈر کو دور کر دیتے ہیں۔